Hello everyone. So in this video we are going to understand eigenvalue and eigenstate of LZ operator. तो basically LZ operator angular momentum का ही part होता है. तो this is one of the component of operator, that is its LZ is actually what is actually measured in quantum mechanics. Actually measured. So there are so many complications in measuring the actual angular momentum L. So what we do, we use LZ operator and also L square operator. So basically जब भी हम angular momentum से deal करेंगे तो हम LZ and L square operator से deal करेंगे rather than LX, LY and L operator. So अब LZ operator का जो form है वो this is the operator minus iota h cut dou by dou phi. अगर आपने इसका प्रूफ नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो में मैंने इसका प्रूफ दे दिया है, तो कंप्लीट डेरिवेशन है. तो इफ यू वांट टू हैव अ लुक जस्ट गो एंड हैव अ लुक ऑन दैट. बट यहाँ पे मैं इस चीज को डिराइव नहीं करूंगा. तो सो LZ ऑपरेटर इज गिवन बाय माइनस आयोटा h कट डाउ बाय डाउ फाई. नाउ अगर हम इस ऑपरेटर को देखेंगे तो दिस इज द फंक्शन ऑफ फाई. दिस इज द फंक्शन ऑफ फाई. एंड ये फाई क्या है? दिस इज एजिमुथल एंगल. एजिमुथल एंगल किसमें? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाई वो अराउंड z एक्सिस घूमता है. ओके, एंड फाई का जो रेंज रहता है वो 0 to 2 पर रहता है. ठीक है, तो अगर हम यही LZ ऑपरेटर जो फंक्शन ऑफ फाई ओनली है, तो हम किसी वेव फंक्शन पे विच शुड बी द फंक्शन ऑफ फाई ओनली. ओके, तो जो हम LZ ऑपरेटर को अगर हम फाई पे ऑपरेट करेंगे एंड से वहां से कोई भी कोई मेजरमेंट आएगा एंड वो मेजरमेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा म्यू से. ओके, दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन. ओके, तो हमें ये फाई हमें क्या निकालना है इस वीडियो में? हमें यही फाई निकालना है. दिस वुड बी द आइगन स्टेट एंड दिस वुड बी द आइगन वैल्यू. तो यही दो चीजें हमें फाइंड करनी है. तो देखो, मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं बेसिक वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू इस चीज को फाइंड करूंगा. देखो, LZ के बदले क्या यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे? माइनस आयोटा h कट डाउ बाई डाउ फाई एंड फाई, इसको थोड़ा डिफरेंट लिखते हैं, इक्वल्स म्यू फाई. इज दैट ओके? नाउ what we do, we separate, we will take this phi this side and d phi on that side and then integrate on the both sides. Okay, so which implies integral of 1 by d phi by phi, okay, equals integral minus mu by iota h cut and d phi. Is that okay? So मैं इस phi को ऐसे ही लिखूंगा, यहाँ पे भी चेंज करूंगा. Now we know integration of this thing which would be ln of phi equals मैं आयोटा को बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीपल करूंगा. सो आयोटा म्यू बाय h कट एंड इंटीग्रल ऑफ d phi. ओके, सो विच implies ln of phi equals iota mu by h cut and this would be phi plus some integration constant which I'll write ln of a. Okay, now take this ln of a to the left side, so it will become ln of phi minus ln of a equals iota mu by h cut and phi, which implies, so it would be ln of phi by a using the property of ln, iota mu phi h cut and phi, which implies, so phi by a would be equals e to the power iota mu phi by h cut. Okay, now which implies phi equals a e power iota mu phi by h cut. So this is the eigen state. This phi would be the function of small phi. Okay, so I'll write it here. This phi would be the function of phi azimuthal angle only, equals a e power iota mu and phi by h cut. Okay, now this phi
is a normalization constant. So we'll find A by using normalization condition. Now since this phi has a range from 0 to 2 pi, so 0 to 2 pi, and this phi function of phi mod square d phi should be equal to 1. This is a normalization condition. Okay, just like you do in the wave function, like integral of minus infinity to plus infinity, psi square dx equals 1. बट अब यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, बट रादर वी हैव phi, एंड phi का रेंज कितना है 0 to 2 pi. So which would be 0 to 2 pi, and यहाँ पे it would be psi star like this, psi star phi d phi equals 1, and phi star क्या है हमारे पास 0 to 2 pi. तो यहाँ पे इसका a star आएगा, a star, and इसका क्या आएगा e power minus iota, because we have to take the conjugate, okay, by h cut, and इसका a आएगा e to the power iota mu phi by h cut and d phi. Now this and this would become it would be equal to 1. So हमारे पास mod a square बाहर आएगा 0 to 2 pi. Since ये e to the power minus है and e to the power plus, तो e to the power 0, which would be 1, and d phi equals 1. So mod of a square, and यहाँ से 2 pi आएगा, because it would be phi 0 to 2 pi, phi and 1, which implies mod of a square equals 1 over 2 pi, which implies a would be 1 over root of 2 pi. So हम क्या करेंगे अब, हम so which implies, तो हम phi को लिख सकते हैं as a function of small phi equals a के बदले में 1 over root of 2 pi डालेंगे, and e to the power iota mu phi by h cut. Let me use a different pen. So this is the eigenstate. This is the eigenstate of LZ operator. I hope you understand. Very basic, very basic calculation. No need to, do a lot of mathematics. Now हमें क्या करना है? Now let's move. Now what we have to do? Let me fix it first. Now we have to find the eigen value of LZ operator. Now आइगन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे. ओके, एंड हमने क्या रख दिया, हमने म्यू को एज ए आइगन वैल्यू रख दिया. इफ वी चेक फर्स्ट इक्वेशन, LZ phi equals mu phi. So this one is the आइगन वैल्यू. तो अब हमें इस म्यू को निकालना है. तो म्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम we will use boundary condition. Okay, so अब इस वाले में boundary condition में क्या होगी, which is actually the periodicity of eigen function. Because अगर आप किसी भी एंगल phi plus 2 pi करेंगे तो आप वहीं पे आ जाएंगे, because this phi is the azimuthal angle. So अगर आप रोटेशन करेंगे 2 pi की तो आप उसी जगह पे पहुंच जाएंगे. तो if you start with some phi dash angle, and if you do plus 2 pi, you will get the same value. Okay, so the condition would be, periodicity condition would be, which is phi, which is function of phi plus 2 pi. If we'll do this, we'll get phi, which is function of phi only. Okay, that means eigen function would be same after 2 pi rotation. Eigen function would be same after 2 pi rotation. I hope आप थोड़ा सा spherical polar coordinate system के बारे में जानते हैं. ओके, अब मैं यहाँ पे रिपीट तो होली नहीं करूँगा, पर थोड़ा आइडिया दे दूंगा. ठीक है, so this one is the z axis, this one is the y axis, and this one is the x axis. Okay,
एंड यहाँ पे कोई भी वेक्टर r है, ओके, विच इज ऑन द स्फीयर. सो दिस इज r वेक्टर, दिस इज थीटा, एंड इस r का जो ये वाला कंपोनेंट है विच इज ऑन द xy प्लेन, विच इज r sin of theta, what angle it makes with the x axis, this is phi. So अगर आप इस phi को पूरा ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो आप वहीं पे पहुंच जाएंगे. ओके, दैट्स व्हाई वी यूज दिस प्रॉपर्टी. नाउ हम अब हमें तो ये तो निकाल लिए हमने ये आइगन स्टेट phi. सो यहाँ पे 1 ओवर रूट ऑफ 2 पाई e टू द पावर आयोटा म्यू. अब इस जगह phi की जगह पे phi प्लस 2 पाई लिखेंगे by h cut equal to 1 over root of 2 pi e to the power iota mu phi by h cut. Is that okay? So यहाँ से अब ये वाला पार्ट तो जाएगा e to the power iota mu phi by h cut, एंड यहाँ से ये वाला पार्ट जाएगा तो वहां से बचेगा क्या, एंड 1 over root 2 pi will go. So वहां से ये वाला पार्ट बचेगा, which implies e to the power iota mu 2 pi by h cut equals 1. Is that okay? Now see, अब ये जो 1 है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. देखो e to the power 0 is 1, e to the power plus minus iota 2 pi would be 1, e to the power plus minus iota 4 pi will be 1. You understand? So because you can write it, you know, cos of, you know, e to the power iota theta would be cos theta plus iota sin theta. So this would be 0, okay, and यहाँ से cos of 2 pi, this would be 1. Okay, these all are 1. That is why we'll write it like this: e to the power iota mu 2 pi by h cut equals e to the power 0 या e to the power plus minus iota 2 pi or e to the power plus minus iota 4 pi dash 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 dash. ओके, अब हम ये वाला तो या तो ये हो सकता है वैल्यू या ये हो सकता है, तो बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बन जाएंगी. ओके, हम इस चीज को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. तो सी, पहले इस वाले को एक्सप्लोर करेंगे. e to the power iota mu 2 pi by h cut would be equal to e to the power 0. तब ये पूरा 0 बन जाएगा. ओके, which implies iota mu 2 pi by h cut equals 0. So mu का वैल्यू क्या आया, 0. This is the first eigenvalue. Now उसी तरीके से e to the power iota mu 2 pi by h cut equals e to the power plus minus iota 2 pi. Okay, so यहाँ से iota mu 2 pi by h cut equals plus minus iota 2 pi. यहाँ से क्या, iota 2 pi will go, this will go, so mu by h cut equal to plus minus 1, which implies mu equals plus minus 1 h cut. okay, उसी तरीके से लास्ट वाला e to the power iota mu 2 pi by h cut equals e to the power plus minus iota 4 pi. okay, which implies iota mu 2 pi by h cut equals plus minus iota 4 pi. अब देखो iota will go, pi will go, 2 is 4, so which implies mu by h cut equals plus minus 2, which implies mu equals plus minus 2 h cut. so अगर आप ये देख पा रहे हैं तो जो हमारा आइगन वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0 h cut, इसको h cut लिख सकते हैं, 0 h cut plus minus 1 h cut plus minus 2 h cut plus minus 3 h cut and so on. ओके, सो हमारा जो म्यू है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एच कट, वायर डिफरेंट पेन यूज करता हूं. सो विच इंप्लाइज जो हमारा म्यू है वो होगा एम एच कट वायर m equals 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on. ओके, सो अब ध्यान रखो यहाँ पे जो, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे रख देता हूं. ओके, अब एक चीज का ध्यान रखो यहाँ पे, जो हमारा जो आइगन फंक्शन था विच इज phi equals 1 over root of 2 pi e to the power iota mu, और क्या था, iota mu phi by h cut. सो ये जो म्यू है यहाँ पे यही है आइगन वैल्यू.
आइगन वैल्यू। सो मतलब अगर आप आइगन स्टेट लिख सकते हैं तो आप आइगन स्टेट से डायरेक्टली अपना आइगन वैल्यू निकाल लोगे। या इसको थोड़ा डिफरेंटली भी लिख सकते हैं। देखो m अकेले आइगन वैल्यू नहीं है, बट रादर m h कट है। देखो इस वेव फंक्शन को लिखने के दो तरीके हैं। एक और तरीका ये है फाई इक्वल्स 1 ओवर रूट ऑफ 2 पाई ई टू द पावर म्यू बाई एच कट के बदले में m लिख सकता हूं आई आयोटा m फाई। अगर आपकी वेव फंक्शन ऐसे लिखी हुई है, दिस इज द सेम वेव फंक्शन। अगर आपकी वेव फंक्शन ऐसे लिखी हुई है तो m इज नॉट द आइगन वैल्यू बट रादर m h कट इज द आइगन वैल्यू। अगर इस तरीके से लिखी गई है तो म्यू इज द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू इज म्यू, इसमें m h कट इज द आइगन वैल्यू। ऐसी गलती नहीं करना कि सीधे m को आइगन वैल्यू लिख डालोगे, ठीक है। सो म्यू इक्वल्स m h कट इज द आइगन वैल्यू। इज दैट ओके? नाउ प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? प्लस माइनस से पार्टिकल कैन मूव इन टू डायरेक्शन। ये जो प्लस माइनस है, लाइक इट से द पार्टिकल कैन मूव इन टू डायरेक्शंस। इज दैट ओके? नाउ I'll take a problem जिसमें हम अच्छे से लाइक अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एनी वेव फंक्शन, जो भी वेव फंक्शन दिया हुआ होगा। तो जैसे ये हमारे पास साइन फाई है। देखो हमेशा याद रखो कि आपको जब भी आप LZ के साथ डील करोगे तो आपको इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल लिखना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल, लेट्स से अब मुझे इसका आइगन वैल्यू निकालना है तो मैं ऐसे नहीं निकाल सकता, तो मुझे इन टर्म्स ऑफ ई टू द पावर लिखना पड़ेगा। हमें पता है जो साइन फाई रहता है वो रहता है ई टू द पावर आयोटा फाई माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा फाई डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ओके, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा फाई और लाइक 1 ओवर 2 आयोटा बाहर माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा फाई। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, देखो इसमें आयोटा फाई है, देखो इसमें अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 ओवर रूट ऑफ 2 पाई, देखो ई टू द पावर आयोटा क्या था, या तो म्यू फाई बाई एच कट लिखना है तो तब म्यू आइगन वैल्यू है, या तो 1 ओवर रूट ऑफ 2 पाई ई टू द पावर आयोटा एम फाई। तो देन एम नहीं है आइगन वैल्यू बट रादर एम एच कट है। तो देखो इस टाइम ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में ये एंड ये इस फॉर्म में है। तो अब m की जगह क्या है, 1 है। तो बिकॉज इसको मैं हटा देता हूं, इसको अच्छे से लिखता हूं। तो ये क्या है, आयोटा 1 फाई। समझ पा रहे? तो m की जगह क्या है, m की जगह पे 1 है। ओके, बट इज m 1 एज ए आइगन वैल्यू? नो, बट रादर 1 h कट। सो म्यू इक्वल्स 1 h कट इज द आइगन वैल्यू। तो यहां पे इसको ऐसे में लिख सकता हूं प्लस आयोटा माइनस 1। समझ पा रहे हैं? मैं उसको उस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, आयोटा माइनस 1 फाई। सो m का वैल्यू क्या है, -1। सो म्यू इक्वल्स -1 h कट इज द आइगन वैल्यू। इज दैट ओके? इज दैट ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो जैसे हमारे पास साई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर है, तो हमें क्या निकालना है, इफ लाइक LZ इज मेजर्ड ऑन दिस psi x y, if LZ measure psi x y, what would be the measurement? Okay, so मेरा like idea would be, since x and y में नहीं लिखना पड़ेगा but rather in terms of theta and phi, so x की जगह पे spherical polar coordinate से r sin theta cos phi and y की जगह पे r sin theta sin phi, तो वहां से होल स्क्वायर कर लेना एंड फाइनली आपका ऐसे निकल जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा e टू द पावर माइनस आयोटा फाई का होल स्क्वायर, ऐसे निकल जाएगा। तो बाद में आप कंपेयर कर लेना, उसके साथ आपका आइगन वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच।